Hello everyone. I hope you are doing well. I welcome you all to this session, three of our 3 days informative series on cybersecurity. And this is our last session. We have covered lots of topic in a span of 2 days. So before proceeding further, I will give you a quick recap about what we have covered in 2 sessions. So starting from the very first, in first session we have covered what is computer networks and what are the network components like routers, switches, hubs, bridge, and end devices like laptop, mobile, and many more. Then we have discussed about topology like physical topology, logical topology. Then we have discussed what is LAN and WAN, what is the difference between these two, local area network and wide area network. Then what is network architecture and what are the characteristics like fault tolerance, scalability, and other two like redundancy. And these are like, then we have discussed what is port number, what is the purpose of this port number, then what are the protocol, different type of protocols like FTP, UDP, TCP, application layer protocols, SMTP or DNS, DHCP, right? These are. And then we have discussed OSI model layers, 7 layer model starting like application, data link, network, transport, and presentation, session, and application layer. And we have discussed the purpose of each layer and what is the use of that layer. Uh, and then we have discussed what is IPv4, IPv6 addressing, what is the use of IPv4 address and IPv6 address. Then we, on the session 2, we have discussed some the concept related to cybersecurity, like what is CIA tried confidentiality, what is integrity, what is availability. Then we have discussed what are the types of hackers like white hat, black hat, gray hat. Then we have discussed some terms related to cybersecurity like vulnerability, exploit, and payload, and these are the things. Then active, and what is active attack, what is passive attack, then what is dictionary attack, and what are the tools required to uh, attack any to establish any dictionary attack. Then what is DOS attack, DDoS attack, how to prevent and how to attack, how to initiate any DDoS attack or DOS attack. Then we have discussed these three-way handshake in TCP, how the connection is established between two endpoints. Then we have discussed SYN flood attack, what is SYN flood attack, and then Smurf attack. Then what is packet sniffing, what are the type of packet sniffing tools required, tools used for packet sniffing, and what are the mitigations, how we can protect ourselves from packet sniffing. We have discussed what is Wireshark. Then we have what is IP spoofing, how to spoof IP address, what is man in the middle attack, what is ARP address resolution protocol, what is the use of this ARP protocol, and how is it used. And then we have discussed what is ARP spoofing. Then what is DSCP, like dynamic host configuration protocol. It is used for uh, automatically IP allocation. Then we have discussed this attack, DSCP spoofing. Then DSCP starvation attack, like a DOS attack. Then we have discussed social engineering attack and types of social engineering attacks. So we have covered lot of topic. So now these are the topic that I will cover in our last session, that is session 3. Like this session will purely based on tools. So like these tools are the most popular in industry and used by like almost every ethical hacker or cybersecurity expert. These tools are also used by black hat hackers, but no problem, we have to use these tools for a good purpose. uh, One thing I want to say, if you use these tools, use carefully, because they are very risky tool. So if you use for any bad purpose, you will end up your life in trouble. So I highly recommend you to use these tools carefully if you want. Okay, so these are the topic like what is nmap, what is metasploit, what is hashcat, what is John the Reaper, Kane and Abel, Burp Suite, Z Attack Proxy, Nikto, Aircrack NG, Wireshark, Nessus, and SQL Map. There are lot of tool other than these tool, but these are the most used tool. Okay, so starting from the very first, network mapper. See, network mapper is like a
tool. It's a tool for scanning. It's a tool for having various capability like scanning any host, scanning open ports, scanning all the IP address, scanning any vulnerability even. We can find even vulnerability of any service that is running on the remote host. We can also use to gather information about OS, what like what OS is running on that remote host and what are the services on that port. Even we can figure it out what are the version that is running on the host. So what is Nmap? Nmap Network Mapper is a free and open source tool. It is an open source tool utility for network discovery and security audits. It is used for network discovery, like it will discover all the live host, all the, it can even one functionality is also it can even discover if your host is behind, if your remote host is behind the firewall. Like there are some scans related which we can use to identify if they are, if the remote host is firewall protected or not. Many system and network administrators also find it useful for tasks such as network inventory, managing service upgrade schedules, and monitoring host or service uptime. Nmap uses raw IP packets in novel way to determine what hosts are available on the network. Means what are the live host. ऐसा नहीं है कि सारे मतलब अगर किसी नेटवर्क पे काफ़ी सारे होस्ट होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे अभी इस टाइम लाइव हो, मतलब वर्किंग कंडीशन मतलब ऑन हो वो। तो ये जो एनमैप है वो सारे लाइव होस्ट बताता है कि कौन कौन से जो अभी होस्ट हैं वो इन वर्किंग कंडीशन मतलब एक्टिव हैं, व्हाट सर्विसेज आर रनिंग ऑन दीज होस्ट आर ऑफरिंग, मतलब उन होस्ट पे कौन कौन सी सर्विस रन करी जा रही है, मतलब क्या क्या उन पर सर्विस रन है, मतलब कौन से पोर्ट पे, मतलब बेसिकली सारे पोर्ट स्कैन करता है, उन पोर्ट पे जो एप्लीकेशन रन हो रही है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालता है। what operating system they are running, कौन सा operating system use कर रहे हैं, whether it is Linux, Windows or any Mac OS or any other, what type of packet filter firewall are in use. It can also detect what are if the remote host is firewall protected or not, and other characteristics like basically Nmap contain more than 100 of script. Basically it has a searching engine NSE. So this searching engine contains more millions of script, I guess. So it uses these script to scan the network. It was designed to rapidly scan large network but find against single host. It complete network, or it can also use for a single host. Nmap runs on all major computer operating system. Official binary package are available. ये सब मतलब वो ये थ्योरी मतलब बेसिकली सारा जितनी भी प्लेटफॉर्म है सब पर अवेलेबल है Nmap. तो यू कैन यूज ऑन मैक, विंडोज एंड लिनक्स. काली लिनक्स में ये प्री इंस्टॉल्ड आता है, लाइक दिस इज द Nmap mapper, network mapper, sorry. So these are the switches, like these are the switch. It's for list scan, ping scan, and other type of scan technique like this. These are the scan techniques you can use for UDP scan. We have learned earlier what is UDP and TCP, so we can use for TCP. This will show all the TCP ports, and this will show all the UDP ports. And these are the different type of scans, like TCP contain lots of TCP packet contain lots of flags. So this is like fin packet is, like fin is also a flag in TCP. So this consists of this will comprises of lots of scan techniques. Or you can define your port range, like if you want to like I have told earlier that we have port from 1 to 65535. These are the port range that we have. So we can scan all the port, we can scan whether all the port or we can scan only a particular port. So these are the script scan, these are the scripts we can run. And like these are the rules for firewall and IDS to detect whether the remote host is behind the firewalls or whether there is no firewall present. So this is the tool.
you can use for finding all the network file, finding all the open host and services in the network. So next tool is Metasploit. So I can start. It will take 1 or 2 3 minutes, 1 minute to start. See, if you are getting into this field like hacking or any cybersecurity field, you have to install like Kali Linux. It consists of lots of tools. Like for information gathering, it has like 5 tools for vulnerability analysis, for web application database. It comprises of lots of tools, and you can use these are pre-installed tools, so you don't need to take attention to install any other tool. This is our Metasploit framework. We will cover first from slide. Like what is Metasploit? Metasploit क्या है? Metasploit एक एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क है. इसमें बेसिकली इसमें क्या है, काफ़ी सारे एक्सप्लॉइट की हर जो भी वल्नरेबिलिटी आती है उसकी करस्पॉन्डिंग जो भी उसका एक्सप्लॉइट निकलता है, जो भी पैच वगैरह निकलता है, वो सारा मेटास्प्लॉइट की डेटाबेस में सारा अपडेट होता जाता है. तो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द लाइक स्कैनर्स भी होते हैं इसमें काफ़ी सारे. इसमें मतलब अटैक्स के लिए हर अटैक्स के लिए अलग अलग चीज़ें डिफाइन है. The Metasploit project is a computer security project that provides information about security vulnerabilities and aids in penetration testing and IDS signature development. It is owned by Boston, Massachusetts based security company Rapid7. Rapid7 ने इसको बनाया Metasploit को. और its best known सब project is the open source Metasploit framework. ये जो Metasploit framework है इसका बेस्ट प्रोजेक्ट है ये जो है ना. अब इसमें बता रहा है कि 1914 एक्सप्लॉइट्स इसमें अभी इसके जो डेटाबेस में करंटली इतने एक्सप्लॉइट्स हैं. 1073 ऑक्सिलरीज हैं. ऑक्सिलरी क्या कंटेन करती हैं? स्कैनर्स हो गया, या फिर मतलब ऑल द पोर्ट स्कैनर, नेटवर्क स्कैनर, आईपी स्कैनर, पोस्ट स्कैनर, ये सारे इसमें ये कंटेन होते हैं. 330 क्या है? पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन. पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है? Like if you have entered into a system, we rarely get the root level privilege inside the system. Like किसी भी सिस्टम में अगर हम हैक करके एंटर करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें एडमिन लेवल प्रिविलेज मिलती हो सकता है कि हम यूज़र लेवल प्रिविलेज में हो. तो अगर उस प्रिविलेज को एक्सक्लेट करना होता है, जब हमें यूज़र लेवल से एडमिन लेवल तक पहुंचना होता है, तो उसके लिए जो एक्सप्लॉइट्स लगते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं. पेलोड्स. पेलोड क्या होता है? पार्ट ऑफ मलिशियस डेटा. हम इसमें पेलोड्स बना के सेंड करते हैं, जिससे जो पेलोड वहाँ पर जो रिमोट होस्ट है उन पर रन करते हैं. एनकोडर्स क्या होते हैं? लाइक एनकोडर्स वो होते हैं जैसे कि अपना जो आईडीएस वगैरह से सिग्नेचर्स होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं अगर हम रॉ पेलोड भेजते हैं, क्योंकि उनके पास सिग्नेचर्स होते हैं. अगर इफ़ वी एनकोड देम इनटू any other form, so it is very difficult for a IDS or any antivirus to detect these payload. So इसका काफ़ी जैसे कि अब अगर अपन सर्च करें, see it contains lots of exploit. So अगर पहले तो फर्स्ट अपना फेस क्या होता है? स्कैनिंग. पहले नेटवर्क स्कैन किया, अब हमें उसमें पता पड़ जाएगा कि कौन कौन सी सर्विसेज हमारे पास रन कर रही हैं, कौन कौन सी नहीं है. फिर हम उसके करस्पॉन्डिंग इसमें जितना भी वो है, जो भी इस पर सर्विस रन कर रही है, हम उसके करस्पॉन्डिंग एक्सप्लॉइट निकाल सकते हैं. एक और होता है जो कि इससे कनेक्ट होता है, सर्च एक्सप्लॉइट. लाइक इफ यू आर रनिंग FTP, so these are the exploit of FTPs. कोई नेटवर्क स्कैन किया, उस पर हमें पता पड़ गया कि जो कि सपोज करो यही सेम चीज़ उस पर रन कर रही है, तो हम जो ये एक्सप्लॉइट है इसको रन करके हम उसमें एक शेल क्रिएट कर सकते हैं, रिमोट शेल, सो दैट वी कैन कंट्रोल. सिमिलरली ऐसे ही हमारा मेटास्प्लॉइट है. मेटास्प्लॉइट प्रोजेक्ट इंक्लूड एंटी फॉरेंसिक एंड इवेजन टूल. इवेजन टूल मतलब वही एनकोडर्स होते हैं इसमें, जिससे एंटीवायरस उनको मतलब एंटीवायरस को इवेट करने के लिए, जिसे वो डिटेक्ट नहीं कर पाए. सम Kali Linux में इंस्टॉल है. Concept है hashing. What is hashing? Hashing is the process of converting a given key into another value. Basically hash क्या होता है? जब
हैश क्या होता है, एक तरीके से वन वे फंक्शन होता है। किसी भी जो भी पासवर्ड होता है हम उसको एक एल्गोरिदम में हैश फंक्शन कह लो या एल्गोरिदम से रन करा के एक हमें नंबर मिलता है। मतलब क्या होता है, हमारा हैश होता है, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में क्या होता है, हमने कोई भी पासवर्ड है उसको किसी एल्गोरिदम से एनक्रिप्ट किया, हमारे पास एक एनक्रिप्टेड पासवर्ड आ गया। अगर हम उस पर डिक्रिप्शन एल्गोरिदम रन करेंगे तो वो जो पासवर्ड है वो डिक्रिप्ट होके फिर से जो हमारे पास मेन जो डिक्रिप्टेड पासवर्ड था उसके बराबर मतलब वही आ जाता है हमारे पास। तो मतलब एज अ टू वे फंक्शन, मतलब हम एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं, डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। अब वन हैशिंग में क्या होता है, इट्स द वन वे फंक्शन। अगर एक बार जो डेटा हैश हो गया उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। लाइक हैश से ऐसा कोई मेथड नहीं होता कि हम हैश पे कोई फंक्शन रन करके वापस से हम की ला सकें। तो इसलिए ये वन वे फंक्शन होता है। हैशिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ गिवन की इनटू अनदर वैल्यू। अ हैश फंक्शन इज यूज्ड टू जनरेट द न्यू वैल्यू अकॉर्डिंग टू अ मैथमेटिकल एल्गोरिथम। द रिजल्ट ऑफ द हैश फंक्शन इज नोन एट हैश वैल्यू। किसी भी की जो हैश फंक्शन से रन करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम हैश वैल्यू कहते हैं, और सिंपली a hash. A good hash function uses a one-way hashing algorithm, or in other words, the hash cannot be converted back into the original key. जो अगर एक कोई फंक्शन बनाया है जो कि मतलब काफ़ी अच्छा है, तो उसमें क्या होता है कि जो हैश वैल्यू आती है उसको हम रिवर्ट ही कर सकते हैं। अब में एक एरर होता है कि सपोज करो कि जब दो की हैं सेम रिजल्ट, मतलब सेम रिजल्ट आउटपुट में उनका सेम रिजल्ट आए एक फंक्शन से। कोई ऐसा फंक्शन है सपोज करो की वन पर भी उसका हैश जैसे कि एच वन आ रहा है और की टू पर भी एच वन आ रहा है, तो इस जो ये कंडीशन होती है ना इसको कहते हैं हैश कोलिजन। कीप इन माइंड दैट टू की कैन जनरेट द सेम हैश। दिस फिनोमिना इज नोन एज द कोलिजन। इसको हैश कोलिजन कहते हैं। इनको हैंडल करने के लिए काफ़ी चीज़ें होती है जिसकी सॉल्टिंग होती है। उसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं आगे की के आगे, तो मतलब एक रैंडम वैल्यू ऐड कर देते हैं जिससे हमारा हैश चेंज हो जाता है। या फिर हम जो हैश है उसको स्ट्रेच कर देते हैं। तो स्ट्रेच करने के लिए भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक होता है पासवर्ड बेस्ड की डेरिवेटिव फंक्शन, तो वो क्या है उसको चेंज कर देता है। और एक टूल होता है बिट क्रिप्ट, तो वो भी उसको स्ट्रेच कर देता है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो हैश फंक्शन है वो डिफरेंट आउटपुट जनरेट करता है। अब इसको अब जैसे कि बताया था कि इसको क्रैक इसको रिवर्ट नहीं किया जाता, बट इसको क्रैक करने के लिए एक टूल है हैश कैट। तो हैशकेट क्या करता है, दिखाता हूँ। ये सारे स्विचेस होते हैं किसी भी टूल में देखोगे तो उसको यूज़ करने के लिए बेसिकली कमांड बनती है। तो वो कमांड क्या है, काफ़ी सारे से मिलके मिलती है। जैसे कि एक हो गया डैश एम मॉड्यूल सेलेक्ट करने के लिए, अटैक मोड क्या है, इस तरीके से वर्बोसिटी वर्जन के लिए डैश भी यूज़ करते हैं। अब हर जगह अलग अलग स्विचेस का अलग अलग काम होता है। ये हमारे हैशेस होते हैं, लाइक MD5 मैसेज डाइजेस्ट 4, मैसेज डाइजेस्ट 5, सिक्योर हैश एल्गोरिदम 1 है, 224 ये इसके वर्जन है। शाह के एक राइप EMD होता है। और ये सारे क्या है, तो काफ़ी सारे हैशेज हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था सॉल्ट होता है, सॉल्ट लग जाता है तो मतलब रैंडम करने के लिए। तो ये डिफरेंट टाइप के हैशेज हैं। तो बेसिकली हैशकेट क्या करता है, देखो इसमें कितने सारे हैशेज के लिए वो है, डायरेक्टरीज की कितनी बड़ी है कि मतलब कितने सारे ये हैश क्रैक कर सकता है। तो हैशकेट क्या है, हैशकेट इज अ पासवर्ड क्रैकिंग टूल यूज फॉर लिसिट एंड इलिसिट पर्पस। बेसिकली इसका यूज सही जगह पे भी है और गलत जगह पे भी है, वो तो सब टूल का ही होता है एक तरीके से। Hashcat is a particularly fast and efficient versatile hacking tool that assists brute force attack by conducting them with hashes value of password that the tool is guessing or applying. Basically Hashcat का वर्क क्या होता है, जैसे कि सपोज करो कि कोई हमारे पास जैसे कि हैश दे रखा है पहले से ही, तो उस हैश को वो क्या करता है, एक डायरेक्टरी लेता है जिसमें काफ़ी सारे पासवर्ड्स होते हैं। अब हमें एल्गोरिदम पता है कि किस एल्गोरिदम से मतलब किस एल्गोरिदम से हमें जो भी हमारा हैश फंक्शन है उससे हमें अपने पासवर्ड को निकालना है। तो बेसिकली क्या है, फाइल होगी उसमें काफ़ी सारे पासवर्ड होंगे, उसमें से एक एक पासवर्ड उठाएगा, उनको हैश फंक्शन से निकालेगा, एक हैश जनरेट होगा, उसको जो हमारा जिस हैश को क्रैक करना है उससे कंपेयर करेगा। तो यही हैशकैट का फंक्शन होता है, एक एक पासवर्ड को एल्गोरिदम में रन करता है
जो हैश आता है उनको हमारे हैश से कंपेयर करता है. Hashcat is a particularly fast and efficient versatile hacking tool that assists brute force attack by conducting them with hash value of password that the tool is guessing or applying. When use of benign purpose such as in penetration testing. Penetration testing क्या होता है, किसी भी कोई भी जो भी सिस्टम है उसको पेनिट्रेट करना, मतलब उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक करते हुए उसके अंदर घुसना. इट कैन रिवील कॉम्प्रोमाइज और इजी टू गैस क्रेडेंशियल. ये क्या है, अब जो भी इजी टू गैस होते हैं, जैसे कि हमारा पासवर्ड है ABCD और QWERTY 1 2 3 और ASDF करके, तो ये ऐसे पासवर्ड जो कॉमनली डायरेक्ट डिक्शनरी में मिल जाते हैं या डायरेक्टरी अटैक में मिल जाते हैं, उनको ब्रेक कर देता है. और ये तो बाकी सारी थ्योरी है. ऑटोमेटेड अटैक होता है, ब्रूट फोर्स, एक तरीके से ब्रूट फोर्स ही अटैक हो गया. टू कंडक्ट डिक्शनरी अटैक एंड रेनबो टेबल्स. रेनबो टेबल्स क्या होती हैं, बेसिकली लिंक होते हैं, जैसे कि वन हैश को पहले किसी एक एल्गोरिदम से एनक्रिप्ट किया, वो किसी एक एल्गोरिदम से हैश करके फिर अनदर उसमें जो अनदर एल्गोरिदम है उससे पास किया, तो मतलब ऐसे चेन बनती है, तो उसको रेनबो टेबल्स कहते हैं. देन अपना अनदर टूल है एक जॉन द रीपर. ये भी पासवर्ड क्रैकिंग टूल है, जॉन द रीपर. ये जॉन द रीपर है, इसमें भी काफ़ी सारे स्विचेज हैं, जैसे कि किस सिंगल क्रैक मोड है, कि मतलब एक किसी एक सिंगल पासवर्ड को क्रैक करना है, या फिर वर्ड लिस्ट अटैक, मतलब डिक्शनरी अटैक हो गया. जैसे कि हम एक एक वर्ड लिस्ट क्या है, हम यहाँ पर अपनी वर्ड लिस्ट देंगे और ये उसमें से एक एक वर्ड को उठाएगा, फिर उसकी करस्पॉन्डिंग स्टेटस चेक करेगा कि मतलब क्रैक हो गया कि नहीं हो गया. तो इसको भी तुम एक एक्सप्लोर कर सकते हो, ये वाला टूल. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है और काफ़ी अच्छा टूल है जो यूज़ होता है आजकल. John the Reaper is a free password cracking software tool originally developed for Linux operating system. For the Unix operating, it can run on 15 different platform. मतलब इसकी compatibility बहुत ज़्यादा है, इसको तुम मतलब मेजरली हर चीज़ पे यूज़ कर सकते हो. It is among the most frequently used password testing and breaking program as it combines a number of password cracker into one package. ऑटो डिटेक्ट, ये जो भी हैश अब जैसे डाला, अब इसमें मैंने बताया था कि हैशेस कितने टाइप्स के होते हैं. अब किसी को जैसे किसी को नहीं पता कि मतलब हमें किस हैश से ब्रेक करना है, तो जो जॉन द रीपर है वो अपने आप ही डिफाइन कर लेगा कि किस हैश, मतलब जो हमारे पास हैश है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, कि वेदर इट इज़ अ MD5 हैश, वेदर इट इज़ अ SHA-1 हैश और SHA-2 हैश. तो ये अपने आप ही उसको डिटेक्ट कर लेगा कि किस तरीके का हैश है वो. इट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर ऑफ पासवर्ड क्रैकर इंक्लूड कस्टमाइजेबल क्रैकर. इट कैन बी रन अगेंस्ट वेरियस एनक्रिप्टेड पासवर्ड फॉर्मेट. इसके बाद जो ये जॉन द रीपर है उसमें काफ़ी सारे तुम क्रैक कर सकते हो, लाइक DES, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, MD5, मैसेज डाइजेस्ट 5, ब्लोफिश. ये लिनक्स है उनमें यूज़ होता है ब्लोफिश. कर्बरोस विंडोज़ का ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है, इसको चेक करना काफ़ी अच्छी चीज़ है. विंडोज़ जो भी विंडोज़ यूज़र है वो लोग यूज़ करना, वो लोग चेक करना कि पहले विंडोज़ नेटवर्क टेक्नोलॉजी लैन मैनेजर, लोकल लैन मैनेजर, इसको चेक करना है. NTLM हैश यूज़ कर सकता पहले, बट अब यूज़ करता है कर्बरोज. इज अ टिकट बेस्ड सिस्टम है ऑथेंटिकेशन का, इसको यूज़ करता है जो विंडोज़ आजकल. और LDAP होता है लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल. इसको भी मतलब इसके जो पासवर्ड्स होते हैं हम उसको भी ब्रेक कर सकते हैं. और MySQL तो सब जानती होंगे, और काफ़ी अदर और भी चीज़ें हैं जिनको ये क्रैक कर सकता है. ना केन एंड एबेल इसका भी पावरफुल वर्जन है जॉन द रीपर का. ये इसमें मतलब बेसिकली ये पूरा कंप्लीट किट है. इसमें तुम काफ़ी सारे अटैक्स हैं वो भी परफॉर्म कर सकते हो, किसी क्रैक भी कर सकते हो इससे. और काफ़ी सारे अटैक हैं. क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी. जैसे कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्टेड नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लाना. क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है, उस क्रिप्टोग्राफी को ब्रेक करना, कि मतलब किस एल्गोरिदम से हमारा प्लेन टेक्स्ट पास होके एनक्रिप्टेड डेटा बना है. सो व्हाट इज कीन एंड एबेल? कीन एंड एबेल कीन से कहा जाता है इट्स अ पासवर्ड particular tool for my window. It can recover many kind of password using methods such as network packet sniffing. एक इसकी फंक्शनलिटी है नेटवर्क पैकेट स्निप करता है. Cracking various password hashes by using methods such as dictionary attack. अब हम सब लोग फैमिलियर हैं डिक्शनरी अटैक क्या होता है.
हमारे पास वर्ड लिस्ट होगी, हम एक एक उसमें से पासवर्ड उठाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग चेक करते हैं। ब्रूट फोर्स भी पता है हम लोगों को क्या होता है। ब्रूट फोर्स सारे जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सारे ट्राई करेंगे। क्रिप्ट एनालिसिस क्रिप्टोग्राफी को ब्रेक करेंगे। क्रिप्ट एनालिसिस अटैक आर डन बाय रेनबो टेबल विच कैन बी जनरेटेड विद द विन आर्टिजन। ये एक ऐसा प्रोग्राम है, मतलब ये विन आर्टिजन रेनबो टेबल जनरेशन, विंडोज रेनबो टेबल जनरेशन, मतलब विंडोज में रेनबो टेबल्स जनरेट करने के लिए यूज होता है ये प्रोग्राम। और KNNable में ये है। KNNable uses dictionary list on the basis as the basis for cracking password brute force attack by trying different password many times even second or decoding information stored on the package attempt to determine the correct password। बेसिकली ये क्या, अब ऐसा नहीं एक करके, इसमें क्या थ्रेडिंग्स होती हैं। सारे जितने भी टूल्स होते हैं ये हाईली CPU यूटिलाइजेशन पे वर्क करते हैं, मतलब इनका CPU यूटिलाइजेशन होता है वो बहुत एक्सटेंसिव होता है। तो ये क्या थ्रेडिंग क्रिएट करते हैं, मतलब काफ़ी सारे मल्टीपल थ्रेड होते हैं, सबको एक 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 पासवर्ड दे दिया जाता है, वो सारा ट्राई करते हैं एक ही चीज़ पर। तो इस तरीके से इनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है और CPU एक्सटेंसिव होती है। और द सॉफ्टवेयर ऑल्सो रिमूव द हिडन पासवर्ड बाय शोइंग पासवर्ड इन द सर्टेन सॉफ्टवेयर पैकेजेस लर्न्स वायरलेस नेटवर्क की फॉर फॉरवर्ड बाय। अब सबका बेसिक वही है, जितना भी इन्फो में, अब चाहे वेदर इट इज़ वायरलेस वेदर इट इज़ ऑन वायर, जितना भी हमारे पास ट्रैफिक आएगा या फिर कोई भी चीज़ को क्रैक करना है, सारे कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये तो हो गया हमारा KNNable। अब आता है बर्ब स्वीट। बर्ब स्वीट बेसिकली क्या है, इसका मेजरली यूज़ होता है वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग। वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग क्या होती है, एक जो अभी हम पढ़ रहे थे वो नेटवर्क पेन टेस्टिंग थी। बेसिकली हम नेटवर्क को ब्रेक कर रहे थे। वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग क्या होती है, इसमें हम वेब एप्लीकेशन को ब्रेक करते हैं, जो भी मतलब हमारी वेबसाइट्स वगैरह होती है ना, इनकी भी एक, अब जैसे कि एथिकल हैकिंग में काफ़ी सारे डोमेन्स होते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज नेटवर्क हैकिंग, उसमें हम नेटवर्क को ब्रेक करते हैं, उसके लिए नेटवर्क का पूरी नॉलेज होनी चाहिए हमें। एक होता है वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, उसमें वेब के बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए। एक होता है मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग, है ना। एक होता है ओसेंट, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं। और अनदर ब्रांच वी कैन से फॉरेंसिक्स, है ना। और डार्क वेब, डीप वेब, सबकी अलग अलग ब्रांच होती हैं, सबके अलग अलग पढ़ाई होती है। तो उस हिसाब से बेसिकली प्रोफिशिएंसी गेन करते हैं, कोई एक्सपर्टीज गेन करता है इन फील्ड में। बर्ब स्वीट क्या होता है, जावा बेस्ड वेब एप्लीकेशन वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग framework. It has become an industry standard of tool used by information security professional. बर्ब स्वीट बेसिकली क्या है, प्रॉक्सी की तरह वर्क करता है। तुमने कोई भी रिक्वेस्ट दी उसको बीच में ये इंटरसेप्ट करता है। मतलब फर्स्ट पहले प्रॉक्सी क्लाइंट से बर्ब स्वीट के पास आएगी, देन बर्ब स्वीट के थ्रू हमारे सर्वर के पास जाएगी। तो बेसिकली प्रॉक्सी की तरह वर्क करता है। अब क्या होता है, अगर इसमें ये प्रॉक्सी की तरह वर्क कर रहा है, जितनी भी जो क्वेरी है ना, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सपोज जैसे कि इस फोटो में दिख रहा है, इसमें काफ़ी सारे टैब्स होते हैं लाइक प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी में क्या होता है कि जितना भी ट्रैफिक है इसके थ्रू होता हुआ पास होगा। अब जो हमने रिक्वेस्ट कैप्चर करी है उसको स्पाइडर में क्या होता है, एक वेबसाइट पे जितनी भी पेजेस हैं, जितनी भी लिंक्स हैं, उसको ये मतलब ग्रैब कर लेगा। स्कैनर क्या होता है, पूरी वेबसाइट को स्कैन कर लेगा, कौन कौन सी उस पर इमेजेस हैं, कौन कौन सी हिडन फाइल्स हैं। इंट्रूडर क्या होता है, मल्टीपल रिक्वेस्ट। इंट्रूडर बेसिकली एक लाइक अ डिक्शनरी अटैक ही होता है। इसमें क्या है, हम जो फील्ड्स हैं वो सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि यूज़र नेम है, पासवर्ड है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया यूज़र नेम और पासवर्ड पे अटैक करना है। देन हम अपनी लिस्ट उसको प्रोवाइड करते हैं, वो हर एक के लिए रिक्वेस्ट भेजता चला जाता है। तो इससे क्या है, हम एक डिक्शनरी अटैक को कर सकते हैं। रिपीटर क्या होता है, जैसे कि कुछ भी चेंजेस को रिपीट, मतलब रिपीटर ऐसे नाम ही बता रहा है उसको कि जो भी रिक्वेस्ट है उसको हम रिपीट करते हैं। कुछ चेंज किया फिर मतलब रिक्वेस्ट कर दिया, तो इसलिए रिपीटर यूज़ होता है। सिमिलरली अलग अलग फंक्शन यूज़ होते हैं। डिकोडर में हमारे काफ़ी सारे डिकोडर्स होते हैं, लाइक HTML डिकोडर और एस्काई। तो इस तरीके से ये पब सूट होता है। दिखाता हूँ मैं अभी।
देखो ये टारगेट है, प्रॉक्सी है, इंटरसेप्ट ऑन हो जाएगा तो यहाँ पर जो भी तुम्हारी सर्विस जो भी तुम्हारी रिक्वेस्ट करोगे वो यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो भी इसके जैसे कि पेलोड, स्नैपर और ये सब, जैसे कि इसमें देखो दो वैल्यूज हैं, है ना। अब हम यहाँ पर अपना पेलोड में यहाँ पर अपनी अपन लिस्ट दे सकते हैं, जो भी तुम्हें अटैक करना है तो तुम यहाँ पर कहीं से भी इसमें लिस्ट ऐड कर सकते हो। जो भी लिस्ट तुम्हें डालनी हो वो सब तुम्हारी लिस्ट आ जाएंगी, फिर एक एक करके इस पर अटैक हुआ करेगा। इस रिपीटर में यहाँ पर तुम्हारी रिक्वेस्ट आ जाएगी, तुम उसको एडिट करके उसका संग की संग रेस्पॉन्स भी यहाँ पर देख सकते हो। इसी तरीके से सीक्वेंसर होता है, डिकोडर होता है। लाइक तुम्हें किस में इतने सारे इसके ऑप्शंस होते हैं कि किस में तुम्हें वैल्यू को डिकोड या एनकोड करना है, तो इस तरीके से वर्क काम करता है ना। अब इस थ्योरी देखते हैं इसकी। Bubsuit helps you to identify vulnerability and verify attack vectors that are effective web application. Because of its popularity and breadth as well as depth of the feature, we have created this useful feature as a collection of Bubsuit knowledge and information. काफ़ी सारी इसमें फंक्शनलिटी जैसे कि हमें देखने को मिल रही है कि प्रॉक्सी है, स्पाइडर है, स्कैनर है, इंट्रूडर, रिपीटर, काफ़ी एक पूरा पावर पैक है ये टेस्ट करने के लिए। और इंटरसेप्शन प्रॉक्सी बेसिकली प्रॉक्सी है, जो भी मतलब डेटा है वो इसके थ्रू होता हुआ जाएगा। अब इसके थ्रू होता जा रहा है तो एक तरीके से मैन इन द मिडल हो गया ये, मतलब जो भी ये प्रॉक्सी जहाँ पर भी आता है वो मैन इन द मिडल, मतलब हम इस प्रॉक्सी को एक मतलब जो भी रिक्वेस्ट है वो इसके थ्रू होती हुई जाएंगी, तो एक तरीके से मैन इन द मिडल हो गया। सारी जो भी रिक्वेस्ट है उनको कैप्चर करेगा, उनका तुम चेंज कर सकते हो, देन उनको फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये था बबसूट। कोई तो लिखता है नो। ओके ओके, सॉरी। अच्छा, अब आता है ज़ैप प्रॉक्सी। ये क्या है? ओवास ओवास एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओपन। इसमें मतलब इसके जो ये क्या है, टॉप 10 वेब वल्नरेबिलिटीज डिफाइन करता है कि मतलब जो रिसेंटली जो इस टाइम टॉप पे वल्नरेबिलिटी चल रही है, मतलब वीकनेस जो वो डिफाइन करता है, उसी की टूल है ज़ैड अटैक प्रॉक्सी। बग स्वीट और ज़ैप प्रॉक्सी हैंड इन हैंड चलते हैं, मतलब सेम वर्क जैसे होता है वैसे ही ज़ैप प्रॉक्सी वर्क करता है। इसी तरीके से ज़ैप प्रॉक्सी वर्क करता है। अब इसमें भी वही रिक्वेस्ट आएगी तुम्हारे पास, यहाँ से तुम इसको इंटरसेप्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी तुम्हारे स्पाइडर का ऑप्शन आता है, जो भी तुम्हारी रिक्वेस्ट आएगी उसको स्पाइडर कर सकते हो। और उस काफ़ी सारे मतलब बिल्कुल ही बर्ड सूट जैसा है एक तरीके से। ये भी एक प्रॉक्सी फ्रेमवर्क है। ZATAC proxy is a free open source penetration tool being maintained under the umbrella of the OWASP, Open Web Application Security Project. ZAP is designed especially for testing web application. ये दोनों ही टूल, बग स्वीट और ZAP, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग। ZAP known as the man in the middle proxy. This is for bug suite. Man in the middle, basically. It is between the testers browser and the web application so that it can intercept and inspect message sent between browser and web application. So working होता है कि जो भी रिक्वेस्ट है you can modify forward to packet on the destination. It can be used as a standalone application under daemon process. So बात वही है कि मतलब प्रॉक्सी की तरह वर्क करता है। जो भी तुम्हारी रिक्वेस्ट आएंगी या फिर जो भी डेटा आएगा वो इसके थ्रू ट्रांसफर होता जाएगा, तो तुम उनको बीच में मैनिपुलेट इंटरसेप्ट या फिर उनको मॉडिफाई कर सकते हो। अब आता है निक्टो। निक्टो क्या होता है? निक्टो एक बेसिकली वल्नरेबिलिटी स्कैनर है। वल्नरेबिलिटी स्कैनर क्या होता है? अब जितनी भी, एक तो होता है मैनुअल टेस्टिंग करना किसी चीज़ की, तो उसमें डिफरेंट मतलब काफ़ी सारे अलग टूल्स लगते हैं। लाइक स्कैनिंग के लिए एनमैप लगा, फिर हमें कुछ मेटास्प्लॉइट से हमने उसका जितनी भी उसमें वल्नरेबिलिटी थी उसको देखा कि मतलब कौन कौन सी हम उसमें अटैक कर सकते हैं। हैशिंग तो ये तो होता है, अगर कोई हैश मिलता है तो उसको कैसे क्रैक करना है,
पासवर्ड मिलता है तो उसको कैसे क्रैक करना है, बस पासवर्ड में कैसे वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं। अब निक्टो क्या है, इन सबका कॉम्बिनेशन है एक तरीके से। ये क्या बताता है कि किसी वेब एप्लीकेशन, बेसिकली यूज होता है वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में, उनका सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, मतलब एक तरीके से स्कैनिंग फ्रेमवर्क है ये। सारी जितना भी पूरा वेब सर्वर है उसको स्कैन करेगा, उसमें से वल्नरेबिलिटीज निकालेगा। इसी के इसमें काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं विच यूज टू स्कैन द कंप्लीट वेब। Nikto is an open source software written in Perl language that is used to scan web server for the vulnerability that can be exploited and can compromise the server. सर्वर में जितनी भी vulnerabilities हैं उसको स्कैन करता है और उनकी करस्पॉन्डिंग जो भी हम exploit कर सकते हैं उनको, तो टू कॉम्प्रोमाइज द सर्वर वो सारा हमें बताता है। It can also check for outdated version detail of 1200 server and can detect problem with specific version detail over 200 सर्वर। इसका जो डेटाबेस है काफ़ी ह्यूज है, मतलब इसमें हम 1200 सर्वर का इंफॉर्मेशन बता लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा लाई करता है, उसमें कौन सी वल्नरेबिलिटी है, कौन सी पैच नहीं हुई है, कौन सा वर्जन इसमें आउटडेटेड लग रहा है। और ये सब इसके सारे टूल्स हैं, स्टील टूल। तो बेसिकली सारा कंप्लीट होने के बाद ये तुमको रिपोर्ट भी प्रोवाइड करता है कि मतलब एक वेब सर्वर में जब स्कैन किया तो उसमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज फाउंड हुई, तो उसकी करस्पॉन्डिंग कौन कौन सी सर्विसेज उस पर ऐसी हैं जो आउटडेटेड है, जिन पे पैच नहीं लगा है। तो बेसिकली कंप्लीट तुम्हें रिपोर्ट बना के देगा, सो यू कैन टेक स्टेप अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। तो यूनिट तो क्या हो गया, एक स्कैन वल्नरेबिलिटी स्कैनर हो गया वेब एप्लीकेशन के लिए। एयर क्रैक एंजिन। अब जब बात आती है वायरलेस की बात, जब जब भी हम मतलब अब ये सारे टूल्स तो उसके लिए हो गए कि मतलब हम तुम सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हो। अब ये होता है वायरलेस अटैक्स के लिए, जो भी होता है, ये वाईफाई का पासवर्ड क्रैक करना हुआ, ब्लूटूथ पासवर्ड क्रैक करना हुआ, तो उसके लिए ये किट होती है एयर क्रैक एंजिन। इसमें क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ कंप्लीट स्यूट है, इसमें काफ़ी सारे टूल्स मतलब एक पूरी किट के अंदर आता है। लाइक इसके लिए हमें स्पेशली एक अडेप्टर चाहिए होता है। इसमें देखो सारे, इसमें भी एक तरीके से क्या है, ये डिक्शनरी अटैक करता है। इसमें क्या है, एक हैंडशेक होता है, वो कैप्चर करता है, उसके बाद उसको ब्रेक करता है। वो कैप्चर करने के लिए तुम्हें चाहिए होता है एक अडेप्टर। अल्फा के अडेप्टर्स आते हैं या फिर पांडा के अडेप्टर्स आते हैं टू कैप्चर दूस हैंडशेक्स। तो वो तो मेरे पास नहीं है, तो मैं इसका बता नहीं सकता। बट वायरलेसली जितनी भी अटैक्स होते हैं, जितनी भी पासवर्ड वगैरह ब्रेक करना होता है, उसके लिए एयर क्रैक एनजी यूज होता है। AirCrackNG is a complete suite of tools to assess Wi-Fi network security. It focuses on different areas of Wi-Fi security monitoring, packet capture and export of data to text file for further processing by third parties. जो भी डेटा तुम्हारा जा रहा होता है थ्रू द एयर, उन सबको कैप्चर करता है। रीप्ले अटैक्स, डी ऑथेंटिकेशन अटैक। रीप्ले क्या होता है, एक ही चीज़ को रिप्ले करना। रीप्ले मतलब जो भी अटैक, जो भी तुम्हारे पैकेट्स भेजे जा चुके हैं उनको दोबारा रिप्ले कर देता है। मतलब किसी, जैसे कि अब टीसीपी वगैरह है, उसमें पैकेट्स वगैरह जाते हैं, सीक्वेंस नंबर बहुत ही मेंटेन रखता है, तो उसको क्या, नेटवर्क को डिस्टर्ब करने के लिए रिप्ले अटैक्स, मतलब एक के बाद फिर कोई सीक्वेंस नंबर दूसरा भेज दिया, तो इस तरीके से नेटवर्क में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। डी ऑथेंटिकेशन मतलब ऑथेंटिकेट करता है, किसी भी ऑथेंटिकेटेड पर्सन को डी ऑथेंटिकेट करना, मतलब उसको डिस्कनेक्ट कर देता है नेटवर्क से। फेक एक्सेस पॉइंट। फेक एक्सेस पॉइंट क्या होता है, बेसिकली जिससे हम सब कनेक्ट होते हैं, मतलब जो भी ये बीकन करता है ना सारा इंफॉर्मेशन की, मतलब एक वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे हैं जिसे हम कहते हैं ना, वो एक्सेस पॉइंट होता है बेसिकली। बीकन करता है ना कि मतलब हाँ मेरा वाईफाई है ये सब, तो ये क्या अपना खुद का एक फेक एक्सेस पॉइंट बना सकता है, जिससे अगर कोई भी कनेक्ट हो तो सारा डेटा उसके पास पहुंचेगा। पैकेट इंजेक्शन क्या होता है, पैकेट को इंजेक्ट करना नेटवर्क के अंदर। टेस्टिंग, चेकिंग वाईफाई कार्ड्स एंड ड्राइवर कैपेबिलिटी। टेस्ट के लिए काम आ सकता है, तुम मतलब अपने जो तुम्हारे पास वाईफाई कार्ड है उसको चेक कर सकते हो कि मतलब कितना कैपेबल है। क्रैकिंग WEP, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, पहले यूज़ होता था, अब इतना यूज़ नहीं होता। और एंड WPA, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस और प्री शेयर्ड की, PSK को कहते हैं प्री शेयर्ड की, मतलब जो भी हमारे पास पासवर्ड होते हैं वो सारे प्री शेयर्ड की होती हैं। मतलब हमें एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होना होता है, फिर हम उसमें पासवर्ड डालते हैं, तो वो जो पासवर्ड डालते हैं वो क्या होता है, प्री शेयर्ड की होता है। WPA 1 होता है, WPA 2 जो आता है ना, WPA 2 PSK यूज़ करते हैं, कि WEP तो यूज़ ही नहीं करते आजकल कोई, तो इसलिए उनको भी क्रैक करने के लिए एलिजिबल है ये। देन अपना आता है वायर शार्क। वायर शार्क बेसिकली
बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जब तुम व्हेन वी टॉक अबाउट नेटवर्क। सो बेसिकली क्या है, नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर है। एक एक पैकेट की कंप्लीट डिटेल तुम्हें बताएगा कि मतलब पैकेट कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या कंटेन कर रहा है। अगर if that packet is sent by any unencrypted or any, we can say that like any unsecure protocol, तो तुम उस डेटा को मतलब रीड भी कर सकते हो कि मतलब जो भी डेटा है वो तुम्हारा कैसे जा रहा है। Wireshark is a free and open source packet analyzer. It is used for network troubleshooting, analyze software and communication protocol development and education. मतलब बेसिकली पूरा डेटा जो भी नेटवर्क का डेटा है उसको एनालाइज करने के लिए यूज होता है। Wireshark is cross-platform using the Qt widget toolkit in current release to implement its user interface and using pcap to convert packets. बेसिकली pcap फाइल में कन्वर्ट करके रखता है, जितने पैकेट्स होते हैं उन सबको कन्वर्ट करके pcap फाइल में बनाता है। और इसका जी तो होता है हमारा वायर शार्क। तो क्या है, जैसे कि ये वायर शार्क, तो ये इसमें pcap फाइल सारी जितनी जो फाइल्स होती हैं वो pcap फाइल में होती हैं। अब सपोज करो जितना भी ट्रैफिक हो रहा है सारा तुम्हारे पास एक एक पैकेट आता जाएगा। जितना भी तुम्हारा ट्रैफिक जाएगा नेटवर्क पे, सारे जितना भी ट्रैफिक है सबको कैप्चर करता है एक एक करके। और फिर उसको तुम सेव भी कर सकते हो इन इफ यू नीड इन फ्यूचर। लाइक सारी प्रोटोकॉल्स के बारे में बताएगा, पूरा कंप्लीट डिटेल, जितना भी एक पैकेट पूरा नेटवर्क पे जितना भी एक पैकेट डेटा कंटेन करता है वो सारा तुम्हें इसमें पता पड़ सकता है। यू कैन रीड फ्रॉम दिस कि वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, क्या सोर्स आईपी है, क्या डेस्टिनेशन आईपी है उसका, है ना, लेंथ ऑफ पैकेट क्या है। इवन इफ़ यू आर यूजिंग एनी अनसिक्योर प्रोटोकॉल तो उसके बारे में तुम्हें पता भी पड़ जाएगा कि उसके अंदर उस डेटा में जा भी क्या रहा है। लाइक देखोगे तो एक वेब पेज है, वो पूरा नेटवर्क पे गया है। अब इसके थ्रू हमने उस पूरे डेटा को स्निफ किया, तो हम उस पूरे डेटा को रीड भी कर सकते हैं कि मतलब कितना जो भी डेटा है एक पैकेट के थ्रू क्या क्या उसमें ट्रांसफर हुआ है। अगर कोई तुम अनसिक्योर प्रोटोकॉल में अपना पासवर्ड वगैरह दोगे और किसी ने स्निफ कर लिया तो वो इसमें क्या क्या डेटा तुम्हारा गया है। तो इस तरीके से इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम सिक्योर प्रोटोकॉल यूज़ करें जिससे जो भी हमारा डेटा है वो एनक्रिप्टेड वे में जाए कि if anyone read that data, he is not able to understand that data. So ये तो था GUI बेस्ड, तो वायर शार्क होता है। और इसी का जो नॉन GUI बेस्ड होता है वो टी शार्क कहता है। और वायर शार्क लेट यू यूजर पुट नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर इनटू प्रोमिस्कस मोड। प्रोमिस्कस मोड कौन सा होता है? प्रोमिस्कस मोड होता है जिस नेटवर्क से तुम कनेक्ट नहीं हो उस नेटवर्क का भी ट्रैफिक तुम देख सकते हो। सपोज करो तुम्हारे घर में वाईफाई है और तुम उससे कनेक्ट नहीं हो, but if you are in promiscuous mode, then also you are able to see what are going into air, what are the packets that are traveling in air from one endpoint to another endpoint, even if you are not connected to that device। कि तुम उस डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो तो भी तुम उसका डेटा देख सकते हो। तो उस मोड को कहते हैं प्रोमिस्कस मोड, है ना। तो ये वायरशार्क के कुछ फीचर्स थे। अब आता है नेसस। नेसस भी एक तरीके से, नेसस भी क्या है, एक वुलनरेबिलिटी स्कैनर है। ये टेनेबल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इसको। तो इसमें भी बेसिकली क्या होता है, तुम आईपी एड्रेस वगैरह देते हो, वो पूरा जो भी होस्ट होता है उसको स्कैन करता है। अब स्कैन करके वो क्या निकालता है, जितनी भी उसमें से वुलनरेबिलिटीज होती हैं, वही एक जो भी वुलनरेबिलिटी स्कैनर्स होते हैं उनका एक ही काम होता है, कौन कौन सी सर्विसेज रन कर रही है होस्ट पर और कौन सा वर्जन है। अगर उन वर्जन की करस्पॉन्डिंग कोई भी वुलनरेबिलिटी अवेलेबल है ऑनलाइन तो वो उनको बताता है कि कौन कौन सी वुलनरेबिलिटी से वो कौन कौन सी उस पर वुलनरेबिलिटीज हैं। तो हम उस पर कौन कौन से उसके करस्पॉन्डिंग अटैक्स बताते हैं कि इस वुलनरेबिलिटीज के वजह से कौन सा अटैक इस पर पॉसिबल है। तो नेसेस कैन दीज वुलनरेबिलिटी लाइक दैट कैन अलाउ अनऑथराइज्ड कंट्रोल और एक्सेस टू द सेंसिटिव डेटा ऑन अ सिस्टम।
कि ऐसी वल्नरेबिलिटी जिससे हम उसमें एक शेल क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम उसका एक्सेस ले सकते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो वो बताता है मिसकॉन्फ़िगरेशन, कोई भी फाइल अगर कोई जो भी है वो मिसकॉन्फ़िगर्ड है ना, डेनियल ऑफ सर्विस वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है उस पर। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है तो मतलब अगर वीक पासवर्ड यूज़ कर रहा है तो वो भी डिटेक्ट करता है। और बेसिकली जितनी भी सिक्योरिटी रिसर्चर्स होते हैं या फिर एक्सपर्ट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं स्कैनर, तो बेसिकली इट ईजी योर वर्क। तो जितना भी तुम्हारा काम होता है ना वो बहुत आसान हो जाता है। सब रिपोर्ट वगैरह पूरा इनको रन कर दो, ये तुम्हारा जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह होती हैं उनको निकाल के पूरा एक रिपोर्ट बना के दे देंगे। तो तुम्हारे लिए काफ़ी आसानी हो जाती है कि मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हारे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है उस होस्ट के रिगार्डिंग। तो ये होता है हमारा वल्नरेबिलिटी स्कैनर नेसस। देन आता है एक एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है, बेसिकली एसक्यूएल क्या होती है, डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए क्वेरी होती है। बेसिकली हम उस पर क्वेरी करते हैं डेटाबेस से, तो वो हमें क्या डेटा बताता है। अब एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक में क्या होता है कि जो हमारा डेटा है ना उसको हम इस तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं कि जिस फील्ड में हम उसको एंटर करते हैं ना तो वो इंटरप्रेट हो जाती है एज अ क्वेरी, कि मतलब जो हमने सर्च डाला वो इंटरप्रेट हो जाएगा एज अ क्वेरी। तो ये क्या होता है डेटाबेस से अनऑथराइज्ड डेटा सारा डिस्प्ले करा देता है वेब पेज पे। SQL injection is a web security vulnerability that allow an attacker to interfere with the queries that an application make to a database. It generally allow an attacker to view data that they are not normally able to retrieve. तो बेसिकली जो डेटा उसके करस्पॉन्ड मतलब जो किसी यूज़र के करस्पॉन्डिंग वो डेटा शो नहीं करना होता वो भी डेटा शो हो जाता है। This might include data belonging to other users or any other data that the application itself is able to access. In many cases the attacker can modify or delete this data. अब जब वो शो कर सकता है तो वो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है ना, वो न्यू यूज़र क्रिएट कर सकता है अनऑथराइज्ड, है ना। तो वो मतलब अगर कोई भी एप्लीकेशन में ये एसक्यूएल इंजेक्शन पाया जाता है तो मतलब वो पूरा डेटाबेस को एक तरीके से कंट्रोल कर सकता है। In some situation, an attacker can escalate an SQL injection attack to compromise the underlying server. पूरा सर्वर हैक कर सकता है उससे, और अदर बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस डेनाल ऑफ सर्विस अटैक। अब जो भी सिस्टम उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया उस पर वो कोई भी अटैक के एलिजिबल होता है। सो ये तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स थे जो कि यूज़ होते हैं, कुछ अटैक्स भी थे दो एक। तो इस सेशन में इतनी था, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस सेशन को। समझ में आया सबको?